Hi everyone, this is Vishal from Team CLAT Prep. So finally the CLAT exam is over. आज आप लोगों को relief मिला होगा. But then let us come to the comprehensive analysis wherein I'll be talking about the level of difficulty of each and every section and then giving you an ideal score. जो fair idea होता है एक score का, that is what I am going to discuss with you. So let's start with the English section first of all. 4 passage. 4 passages followed by 6 questions each. Length of the passage was easy. मतलब अगर देखा जाए तो बहुत कम था length of the passage, तो one could easily read and comprehend. Subject was easy. 2 तो education based के ऊपर था जो आप लोगों ने बहुत सारे practice करी होंगी. तो it was very obvious कि English section को अगर देखा जाए one could easily solve the entire section within 20 minutes. जो students से मुझे feedback मिले हैं, questions बहुत easily solvable थे क्योंकि options भी ऐसे बने हुए थे कि one could easily eliminate the incorrect answers and get to the correct answers which was very very evident. So अगर आपने ढंग से पढ़ा तो बहुत ज्यादा time consuming नहीं था, तो English section was easy to solve and an ideal score for this particular section would be taken as 21 plus. Right? अगर किसी का 20 plus score भी आ रहा है तो consider it as a good score. Then coming to the legal section. Sorry, let's talk about GK section first. So अगर मैं GK section की बात करूं, there were a total of 28 questions, जिसमें you had 5 passages. अब अगर GK section की बात करें, what was the change in this section? आपको क्या कोई भी क्वेश्चन के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी? यस, बिकॉज देयर वर मेनी आंसर्स गिवन इन द पैसेज इटसेल्फ. तो मैं ये कहूंगा जब आपने ये एनालाइज कर लिया था कि देयर आर मेनी आंसर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द पैसेजेस एंड यू नीड टू गो थ्रू द पैसेज, तो इसलिए थोड़ा सा ये सेक्शन टाइम कंज्यूमिंग हो गया होगा. आज टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जितना टाइम आपने इंग्लिश सेक्शन की वजह से सेव किया होगा, जिसके लिए हम आइडल टाइम 25 मिनट्स कहते थे, बट आपने 20 मिनट्स में इजीली सॉल्व किया होगा, तो बाकी बचा हुआ टाइम आपने आराम से कॉम्पेंसेट कर लिया होगा जीके के अंदर. एंड अगर आपने 15 to 20 मिनट्स भी दिए होंगे जीके में, दैट वाज more than sufficient time to answer all the questions. Now I don't say that GK knowledge की जरूरत नहीं थी. Obviously you should have some knowledge about the theme, the topics of the passages, but then there were few questions जिसका जो feedback मिला है मुझे students से, जो faculties हमें feedback दे रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि even if you would not have gone for holistic preparation of GK, तो भी आप 10 to 12 question बहुत easily आराम मार्क करके आ सकते थे. In fact अगर 9th-10th के history वाले portion को उठा के देख लो, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, they could have answered these questions easily. This is what the feedback is given to me from the faculties and the students. So GK was manageable, well in time, and आप आराम से इसको मतलब 24 to 25 का ideal score लेकर के चल सकते हो. So 24 plus score in GK and 21 plus 45 plus का score, तो ये दोनों section मिला करके आपको definitely दे रहे हैं. But then coming to the third section which is legal section, which was a matter of surprise because यहाँ पर आपके पास जो 6 passages आए थे and total constituting of 32 questions, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते थे बिकॉज लीगल अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा इजी आया है. यहां पर आपके कोई भी प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले. ऑल दी 32 क्वेश्चंस वर वन लाइनर्स, और कुछ जगह तो आपको लीगल नॉलेज अगर थोड़ी सी भी है आपके पास तो आराम से सॉल्व कर सकते थे. आपके पास जो टॉपिक्स भी आए थे वो बेसिक लॉ से रिलेटेड थे, जैसे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का था, क्राइम का था, आईपीआर से रिलेटेड आया, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम दिस ईयर, सो वो भी डेफिनेटली आना ही था और वो आया. और आपके पास 1-2 पैसेज वो थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग के ऊपर थे. तो आपके जो 6 पैसेजेस थे वो बहुत ज्यादा डिबेटेड नहीं आए, कोई आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक लेकर के नहीं आ रहे. इट इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी डिड इन क्लास लॉट मेनी टाइम्स एंड पीपल वर कॉन्फिडेंट. द काइंड ऑफ फीडबैक आई रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वन कुड इजीली सॉल्व द entire section within 30 minutes. और within 30 minutes अगर आपने ये 32 questions solve किए हैं, the kind of boost up the motivation you people would have got in the paper was immense obviously, जिसका फर्क obviously बाकी sections पे आना चाहिए था. So one who started with legal definitely got themselves motivated because 30 minutes में पूरा legal section solve हो जाना, 32 questions solve कर जाना, that too being confident about the answers you give because बहुत evidently answers आ रहे थे. So ideal score for this legal section would be taken as 28 plus का स्कोर बहुत इजीली आ सकता है लीगल सेक्शन में. Then the game changer for today's exam would be taken as logical reasoning, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ सरप्राइज लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास 4 पैसेजेस थे, लेकिन वन ऑफ द पैसेज वॉज नॉट अ पैसेज, इट वॉज अ सेट, और वो एनालिटिकल रीजनिंग का सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आया. बाकी 3 जो पैसेजेस थे, वन वॉज
फ्रॉम द थीम विच वॉज टेकन प्रीवियस ईयर, कंसल्टेंट का रोल अज्यूम करके आपको अपने सजेशंस उसके बारे में बात करना था. दैट वाज इजी एंड वेरी इजी टू सॉल्व. 6 के 6 क्वेश्चन जो उसमें आए हैं उसके सारे ऑप्शंस इतने एविडेंटली गिवन है जो करेक्ट आंसर है. आप आराम से बाकी इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो. मतलब उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. कोई भी स्टूडेंट आराम से 6 on 6 उस पर्टिकुलर पैसेज में ला सकता था. फिर मूविंग अहेड, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट 2 पैसेजेस, उसमें से वन ऑफ द पैसेज आई वुड से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता था उसमें. लेकिन 3 पैसेजेस की अगर मैं क्यूमुलेटिव स्कोर की बात करूं तो कोई भी आराम से 14 to 15 का स्कोर आउट ऑफ 18 ला सकता था. लेकिन प्रॉब्लम आया जब आप उस एनालिटिकल रीजनिंग के सेट पे आए, वेयर इन यू हैड टू डू द सिटिंग अरेंजमेंट. मेकिंग द पीपल सिट ऑन द सर्कुलर टेबल वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. बहुत इजीली सॉल्व हो रहा था. आपने विद इन 2 मिनट्स बड़े आराम से सबको बैठा दिया होगा. लेकिन प्रॉब्लम था उनके क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस में. 4 क्वेश्चंस आई वुड से was definitely wrong because they had no correct options. आपके 6 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्वेबल थे और 4 क्वेश्चंस गलत थे. Now what was the problem there? अब एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सेट तो बना दिया करेक्ट लेकिन 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा. सो जो फीडबैक मुझे मिला, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु ट्राई टू सॉल्व दिस सेट मोर देन 4 to 5 टाइम्स. कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट 3 सेक्शंस में मान लीजिए लीगल, इंग्लिश और जीके कवर कर लिया एंड देन दे स्टार्टेड विद क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इन द 4th ऑर्डर. तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास सैंपल टाइम है. लेकिन अगर किसी ने क्रिटिकल रीजनिंग को अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सेकंड पे रखा होगा, फर्स्ट पे रखा होगा, और अगर उन्होंने वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले सेट पे बहुत टाइम लगा दिया होगा, जो कुछ स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली 15 to 20 मिनट्स का टाइम भी इन्वेस्ट कर चुके थे उस सेट पर, उसकी वजह से वो उनके लिए गेम चेंजर बना बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सॉल्व और रीच द 5th सेक्शन. और बहुत सारे स्टूडेंट्स एज यूजुअल क्वांट को 5th सेक्शन में रखते हैं और काफी स्टूडेंट्स का इस वजह से क्वांट सेक्शन सॉल्व नहीं हो पाया. दिस इज द फीडबैक व्हिच वी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स व्हेन वी वर इंटरव्यूइंग, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स लिमिटेड टू आवर इंस्टीट्यूट बट द अदर स्टूडेंट्स एज वेल. तो इंस्टीट्यूट के जहां सेंटर से बाहर हमने बच्चों से फीडबैक लिया तो ये समझ में आया कि लॉजिकल रीजनिंग की वजह से कहीं ना कहीं उनके बाकी सेक्शंस हैम्पर हुए हैं. अब उस पर्टिकुलर सेट का क्या होगा? क्लैट कंसोर्टियम माइट डिस्कार्ड द एंटायर सेट और दे मे कंसिडर 2 क्वेश्चंस बिकॉज उन 2 के आंसर्स फिर भी आ रहे थे जिसमें वन ऑफ द आंसर वाज नन ऑफ द अबव, जिसमें स्टूडेंट्स नॉर्मली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं वो डिस्प्यूटेबल थे. सो लेट्स सी व्हाट क्लैट कंसोर्टियम डज अबाउट इट. मे बी चारों को डिस्कार्ड किए जाए, हो सकता है पूरे के पूरे सेट को ही डिस्कार्ड कर दिया जाए. तो अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करूं, आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली डिस्कार्ड है. एक क्वेश्चन ऐसा था सेट में जहां पर दे वर टॉकिंग अबाउट 5.5 मिलियन, जहां पर होमलेसनेस की बात हो रही थी यूएस में, जबकि आपके पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है 5,80,000 लोग थे वहां पर. अब वो 5.5 मिलियन के बराबर भी नहीं है, 100 मिलियन भी नहीं है. टेक्निकली मोर देन 5.5 मिलियन शुड बी टेकन एज द आंसर, लेकिन यहां पर ये भी डिस्प्यूटेबल ऑप्शन है. तो क्या 5 क्वेश्चन डिस्कार्ड होंगे? अगर 5 क्वेश्चन डिस्कार्ड होते हैं, इन दैट केस out of the 19 remaining questions one could easily score 15 plus. क्योंकि मुझे लगता है इसमें कि अगर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को भी ले लिया जाए उस सेट पर्टिकुलर सेट के, तो ऐसा लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 गलत होंगे. सो अगर 2 गलत भी हो जाते हैं तो भी आपका जो स्कोर है वो 16 प्लस आ रहा है. तो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए मैं कहूंगा बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूटेड ऑप्शंस, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस, 16 प्लस का स्कोर इज अ फेयर एनफ स्कोर. अब क्वांट वॉज अगेन देयर वर 2 सेट्स, 2 सेट्स, हर एक सेट के अंदर 6 क्वेश्चन. तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द पेपर की बात की जाए तो नंबर ऑफ पैसेजेस वर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स के बढ़ गए होंगे. जो आपका सेक्शनल स्कोर है वो आइडियली बढ़ गया होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपने लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को कैसे हैंडल किया. सो अगर मैं अब क्वांट सेक्शन की बात करूं जिसमें आपके 2 सेट्स आए थे, उन दोनों सेट्स इजीली सॉल्वेबल थे, मतलब वन कुड सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली. एक प्रॉब्लम आया था एक वन ऑफ द सेट्स में पर्टिकुलर, जहां तक मुझे याद है हैश वाले सेट के अंदर स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि वन ऑफ द क्वेश्चन हैड टू बी सॉल्व्ड विद रेफरेंस टू द अबव क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन का रेफरेंस गलत दे रखा था. वो आइडियली 3 क्वेश्चन ऊपर गिवन था उस पर्टिकुलर सेट में, बाकी सारे सेट्स में देयर वाज नो प्रॉब्लम, राइट.
सो उस केस में इट इज वेरी ऑब्वियस, जहां पर आंसर किसी का गोवा आया होगा, तो मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वहां पर काफी लोगों ने अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा तो उसका कोई बेसिकली मैच नहीं मिला हैश सेट में पर्टिकुलरली, बाकी सारे लोग आराम से सॉल्व कर सकते थे उस क्वेश्चन को। सो मैथ्स में अगर उस सेट को डिस्कार्ड कर दिया जाए, उस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया जाए, आई एम सॉरी, बिकॉज वो क्वेश्चन एक सेट में डिस्प्यूटेबल हो गया, सो आउट ऑफ द रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस वन कुड इजीली स्कोर 9+। सो क्वांट के आइडियल स्कोर को मैं 9+ रखता हूं, लॉजिकल रीजनिंग के आइडियल स्कोर को मैं 16+ रखता हूं, विच इज टोटल 25 नाउ। अगर मैं लीगल सेक्शन की बात करूं, 28 का स्कोर डेफिनेटली अचीवेबल है, सो 28 एंड 25 makes it 53। फिर मैंने आपको इंग्लिश में ऑलरेडी कह दिया है कि somewhere close to 2021, so 53 and 21 it is already 74 का स्कोर। एंड कमिंग टू जीके क्वेश्चन, जो मेरे पास फैकल्टीज का फीडबैक है, सो आराम से कोई भी स्टूडेंट 22 to 24 स्कोर करेगा। सो अगर 22 to 24 का स्कोर भी मानता हूं तो ऑलमोस्ट 96+ का स्कोर मुझे यहां दिखाई दे रहा है। सो इफ एनी ऑफ यू आर स्कोरिंग लेट्स से 95+ इन द ओवरऑल पेपर, बिलीव मी दैट यू आर गोइंग टू मेक इट टू द टॉप 5 NLUs। टॉप 5 NLUs के लिए 95+ का स्कोर डेफिनेटली आ सकता है और ये अचीवेबल था। सो इट इज अ मैटर ऑफ लक कि आपने आज अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या रखा। अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन को फर्स्ट सेक्शन या सेकंड सेक्शन में किया तो उसका इंपैक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उस सेट में उलझे रह गए तो उसकी वजह से जो आपका टाइम कंजम्पशन था, उसकी वजह से आपका कोई और सेक्शन कंप्रोमाइज हुआ होगा। दोज हु आर फॉर्चुनेट अनफ या लकी अनफ, या मैं कहूंगा जो स्ट्रैटेजी वाइज चल रहे हैं, या फिर इनफैक्ट बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने नहीं वेस्ट किया एक पर्टिकुलर सेट के ऊपर, अगर वो ये रियलाइज कर चुके हैं कि हाँ ठीक है इसके ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, देयर हैज टू बी सम डिस्प्यूट इन इट, देन they would have saved their time and capitalized it on the other sections. So this is the overall analysis of today's paper. So I again repeat फटाफट से, इंग्लिश सेक्शन की बात करें 21+ का स्कोर डेफिनेटली आइडियल स्कोर है, वन कैन इजिली अचीव क्योंकि ये 20 मिनट्स के अंदर सॉल्वेबल था। देन कमिंग टू जीके सेक्शंस, जहां पर बहुत ज्यादा आपको जीके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑब्वियसली यू हैड टू गो थ्रू द पैसेजेस, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हुआ होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल सिनेरियो, थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन देन वन कुड इजीली स्कोर अराउंड 22 to 24 का स्कोर। देन कमिंग टू द लीगल रीजनिंग सेक्शन विच वुड बी कंसिडर्ड एज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, बिकॉज डिस्प्यूट्स देखने को मिले नहीं, एंड अकॉर्डिंग टू द फैकल्टीज एंड द फीडबैक गिवन बाय द स्टूडेंट्स, one could easily solve the entire set within a very good time level, that is 30 minutes के अंदर सॉल्व हो रहा था, एंड 28+ का स्कोर डेफिनेटली अचीवेबल है। देन द गेम चेंजर, अगेन आई टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, मैं उसको कहूंगा मॉडरेट, आप चाहे डिफिकल्ट कहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का टाइम काफी वेस्ट हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से उनको कंप्रोमाइज करना पड़ गया है। सो यहां पर मैं कहूंगा लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन वाज द एक्चुअल गेम चेंजर, और यहां पर उन स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली एज लिया होगा उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने क्वांट सॉल्व किया है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट सॉल्व क्वांट। सो इस साल अगर आपके स्कोर में, आपके रैंक्स में अगर कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा, अकॉर्डिंग टू मी इट इज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन एंड द क्वांट सेक्शन। तो क्वांट सेक्शन क्योंकि सॉल्व बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं है डर के मारे, जबकि इट वाज इजी टू सॉल्व, और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया होगा, एंड आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए, शुड नॉट गेट स्टक ओवर अ पर्टिकुलर सेट, लेकिन फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जब हमें ये लगता है कि हम इतना जब सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। सेट तो सॉल्व हो रहा था लेकिन क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल था, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता नॉर्मली। सो इसकी वजह से लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन मैंने आपको कहा है 16 का स्कोर इज अ गुड स्कोर, एंड क्वांट में 9+ का स्कोर। सो ओवरऑल अगर आप 95 लेकर के आ रहे हो, बी रेस्ट अश्योर्ड दैट यू आर गोइंग टू क्रैक इट टू द टॉप 5 NLUs. So this is all about the analysis of the CLAT paper 2025. Thank you.